Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग करने की ज्यादा ही याद आ रही है। स्कूल आ जाओ। क्या सिखा रखा है आपको क्लास के लिए? विदाउट स्पीकिंग वी विल डू लाइक दिस, सेम थिंग अगेन एंड अगेन एवरी डे। आई कैन नॉट टेल यू। हर महीने, एक महीने से, 1.5 महीने से मैं आपको एक ही चीज डेली समझा रही हूँ। मैं ऐसे भी मान लूंगी और बच्चे ये नहीं सोचे कि मैडम ने हमारा जवाब दे दिया। आप देखो बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर कीप ऑन ज्वाइनिंग। अभी 9 बच्चे थे, अभी 16 हो गए। तो मैं सबके लिए अलग अलग से नहीं कर पाऊँ, तो आप समझ जाओगे हाँ मैडम ने देख लिया। आपका ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास शुरू होते ही ऐसे करना है। इसको हमने आपका गुड मॉर्निंग मान लिया। इज इट क्लियर? ओके अंशिका, एम आई ऑडिबल? Yes. Okay. So as all of you know, yesterday we discussed the poem. We recited the poem "My Shadow." I also told you that I also just tell you the difference between shadow and shade. Yes. Okay. So my shadow in that poem, we came to know that what a child feels when he or she sees the shadow. What he feels? He feels that shadow is very lazy. है ना? Shadow is like India rubber ball. Sometimes get very large, longer. Sometimes it gets small. Okay. So shadow has no shape. And one of the children from the class, he or she told us, and very right, correctly, he said that shadow depends upon the presence of light. जितना लाइट होगा उसके हिसाब से शेडो डिपेंड करेगा कि कितनी रोशनी। धूप में जाओगे आपका शेडो चेंज हो जाएगा, रात की लाइट में आपका शेडो चेंज हो जाएगा। अब इस कमरे में जहां मैं खड़ी हूँ पूरा उजाला है, तो शेडो नहीं के बराबर है बिल्कुल। आई कैन नॉट सी माई शेडो। इज दैट क्लियर? Later on, I told you to write the poem. So those who have written the poem in the notebook, they can do like this. So I should come to know who have written. Do like this. So I come to know that they have written the poem. Okay? Yeah. Okay. Kusum Galwa, don't show me, बेटा मुझे वैसे वो इतना तुमसे ढंग से दिखता नहीं है. If you have written, you can do like this. वो तो मुझे जिस बच्चे पे शक होगा मैं उसका फोटो मंगवा लूंगी कि मुझे पर्टिकुलर किसी बच्चे का फोटो मंगवा लूंगी कि भाई भेजो, है ना? और वेदांत अभी क्लास शुरू हुआ है, पानी पी के बैठना चाहिए था। अभी 2 मिनट हुए क्लास शुरू हुई, तो 30-40 मिनट हो जाता तो मुझे समझ में आता कि प्यास लग रही है। क्लास में बैठने से पहले वॉशरूम, पानी सब यूज करके बैठो, ताकि कम से कम 20-25 मिनट तक आपको कुछ जरूरत ना पड़े। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन। आई एम हैप्पी टू सी comes down that most of the students have written the poem My Shadow in the notebooks. Pratik. Pratik. Yes, ma'am. Who has written the poem My Shadow? Yes, ma'am. Who has written the poem My Shadow? Robert. Robert? Only Robert? Yesterday I asked you all. Okay, your turn is over, Pratik, now. Abhiraj. Robert Louis Stevenson. Okay. Abhiraj, put your mic off. Prathamesh, I told you to go for the short form. Robert Louis Stevenson. This much longer you will write in exam. R.S. Delian. Yes, R.L. Stevenson. Stalin नहीं है. R.L. Stevenson. Stevenson. Okay. So how can you write the name of the poet in the short form? R. L. Stevenson, like this. R. L. Stevenson. Is that clear? Is that clear? If it comes in exam, you will write like this. R. L. Stevenson. वो मैं आपके अच्छे के लिए बोल रही हूँ। अगर आप रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन पूरा लिखोगे तो कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक करोगे. So already the name is very long. R. L. Stevenson, you can write like this. Okay.
Coming to the point now, today's class, as you know that we have completed the poem recitation. I also explained you the poem and all of you have just told me that you understood the poem well. So now comes the turn of new words. Open your notebooks, write today's date and start writing some of the words I am giving you. Though the words are very simple. I will write one time on the board and you are supposed to write. Ashi, how many times? Yes, ma'am. We write new words in 3 times. Very good, Ashi. Thank you. So all of you know, all of you already know. अगर फिफ्थ ए के बच्चे को बाई चांस को समझ में ना आ रहा हो तो फिफ्थ बी के बच्चों से आप पूछ लीजिएगा. वैसे तो मुझे लगता है आप आ गया होगा क्योंकि मैं आपको अप्रैल से पढ़ा रही हूँ. ठीक है, हम यूनिट 3 पे पहुंच गए हैं. ओके ना, एवरीबॉडी नो ना. एक ही वर्ड को सेम वर्ड को 1 2 3 टाइम आपको लिखना है. बट हियर ऑन द बोर्ड आई विल राइट इट हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम. ठीक है, अभी आप चाहो तो यू कैन आल्सो राइट 1 टाइम, बट आफ्टर द क्लास 2 मोर टाइम्स आपको उसके सामने लिखना है. इज दैट क्लियर? यस, क्लियर टू देशना, तरणवीर, प्रथमेश, निकिता, वेरी गुड. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड. फर्स्ट वर्ड इज शैडो. SHADOW. मन में स्पेलिंग बोलते जाओ, इसे कभी भी स्पेलिंग भूलेंगे नहीं. हील्स, हील्स का मतलब जो अपनी एरिया में होती है और आपकी मम्मी जो हील्स पहनती है, ऊंची एरिया में चप्पल सैंडल पहनती है वो. ठीक है, PROPER प्रॉपर. SHOOT शूट, शूट कर देना, किसी को शूट करना. HAD हेड वो इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बट मैं इसलिए लिखा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो. HAD हेड वो है हेल्पिंग वर्ब. ये HAD हेड, हेड ये अपना वाला हेड. फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक. ये फ्रेज भी यूज करते हैं. ओके, ये नॉर्मली भी. She was wearing a lot of gold from head to toe. He was fully covered from head to toe. Head to toe का मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक. ओके, अब जैसे इंडिया रबर बॉल, ये बहुत लंबा वर्ड है. अगर ये आपका 3 टाइम्स नहीं आया तो ये नहीं कि कॉपी में आप गंदा गंदा सा लिख दो. थोड़ा सा यूज योर ब्रेन. इफ इट इज नॉट कमिंग 3 टाइम्स, व्हाट विल यू डू? यू कैन राइट इट ओनली 2 टाइम्स. जो लंबा वर्ड है, इतना लंबा वर्ड है, दिस इज अ लेंथी वर्ड, सो यू विल राइट दिस वर्ड ओनली 2 टाइम्स. यस, नंबर 8 पे है DEWU, which I told you the meaning yesterday. What is the difference between DEWU and DUEDU? कल बताया था मैंने आपको. यस, आशीष नोटिंग हर हेड. हाँ मैडम, बताया था. ड्यू और ड्यू में अंतर है. व्हाट इज द DUEDU का मतलब बेटा आपकी फीस ड्यू है, बेटा आपकी क्लास ड्यू है, ऐसे. और DEWU का मतलब जो मॉइस्चर सेटल हो जाता है. अभी जब मीनिंग सीख पाऊंगी तो आई विल गिव यू. ओके, 9 नंबर से आएगा बटर कप. ये आप लोग के लिए नया वर्ड है, इसको हमने पहले नहीं पढ़ा है. बटर कप. तरणवीर, फ्लावर. वेरी गुड. तरणवीर समझ गया कि क्या करते हैं. ओके, बटर कप इज अ काइंड ऑफ फ्लावर. एंड द लास्ट वर्ड इज errant. ARRANT. Errant. So these are the new words for poem 3. These are the new words for poem 3. 2 minutes I am giving you. Handwriting should be nice, neat and clean. Tomorrow you have calligraphy competition also. ठीक है, तो पार्टिसिपेट भी करेंगे और अच्छे से लिखेंगे. ओके, ठीक है. Two minutes I am giving you. 2 minutes. Ma'am, please. Yes, I have given you side.
Rajwal has done, very good. Imani has also done. Imani writing अच्छी लिखना बेटा. Christina has done. Gaurav has done, very good. Pratik has done. भावेश फिनिश, very good. भावेश कॉपी दिखाना जरा पास में लाके. कैमरे के पास कॉपी दिखाना भावेश, बिल्कुल पास में चिपका के. Show me your notebook, भावेश. भावेश. Okay, very good, भावेश. Yes, ma'am. यथार्थ का हो गया, शाबाश. One more minute I am giving you. जो बच्चे स्लो लिखते हैं उनके लिए. Archita has also completed. Nikita has completed. Very good. Arav has completed. Ananya, Nishtha, Karanveer, they have also completed. Jitendra, Sadia, Anita, Mohit. Okay, time up from my side. 2 minutes I told you. So 2 minutes over, only this much words. And 2 times if you have not written, later on you can write. अगर आप अभी 2 बार नहीं लिख पाए हैं, क्लास के बाद लिख लीजिएगा. चलिए. अब अपना पोएम के नीचे देखो. How many meanings are given? हर्षिता. Meaning. Harshita, how many meanings are given at the? Ma'am, 4 meanings. 4 meanings. India rubber ball, buttercup, errant, and errant sleepy head. तो उसके completely inattentive की spelling book में wrong है. Inattentive का spelling I am writing on board. आप लोग लीजिए. इसको पहले correct करो book में. This is the spelling of inattentive. Book में it is given wrong. Book में पहले correct कर लीजिए. Corrected everyone? Have you corrected the spelling in the book? So, how many meanings are given at the bottom of the poem? 4 meanings. अब आप new words you have written. New words you have written. अब आप new page पे ऊपर heading डालेंगे meanings. और ये 4 meanings जो book में दे रखे हैं, you will write in your notebook. Note them down in your notebook. Meanings. 4 meanings are given. Meaning number 5 I am giving you here. Four meanings you are supposed to copy from your books. 5th meaning I have written on the board. 6th meaning also I am writing. So in all total we will have 6 meanings. Total meanings we will have 6. 4 from the book and 2 from the board. Ma'am. Yes, somebody was telling something. कोई कुछ बोल रहा था बीच में, मैम. मैम मैं पूछ रहा था कि मैम राइट साइड का दिख रहा है. राइट साइड का क्या नहीं दिख रहा है? सब तो दिख रहा है.
ये देखिए क्लियर, बिल्कुल क्लियरली बोर्ड विजिबल है मुझे। मैम आपने मैम आपने वो मूव के बाद क्या दिखाया? मूव के बाद मैं पूरा पढ़ के बता दूंगी, वेट। यस, अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हैव यू कंप्लीट द 4 मीनिंग्स फ्रॉम द बुक? बुक वाले हो गए आपके? ओके, सो मैं बता रही हूँ व्हाट आई हैव डन। फाइट शूट, एस डबल ओ टी शूट, मूव रैपिडली एंड सडनली, मूव रैपिडली एंड सडनली, मूव रैपिडली एंड सडनली। Okay, 3 times I have done this. Now number 6, due, D-E-W, due, जिसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था. Now you are supposed to write in the notebook. Drops, drops का मतलब बूंदे. Drops of condensed, जमी हुई condensed, थोड़ी गाढ़ी. Moisture, moisture क्या होता है? पानी, है ना? नमी क्या होती है? वो moisture होता है, नमी. Forming on cool surface at night, जो रात को फॉर्म हो जाती है ठंडक की वजह से, मॉइस्चर की वजह से रात को जो बूंदे शेप ले लेती है, उनको बोलते हैं DEW, ड्यू। यस प्रतीक। मैम इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन आंसर कराओगे? जो भी करवाऊंगी अभी पता चल जाएगा आपको, यू विल कम टू नो। क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, इसके बाद राइमिंग वर्ड्स। अरे भाई कर लेते हैं। First we will do rhyming words and then we will start question answer. One more minute. I am giving you, for those who have not completed all the 6 meanings, you are supposed to complete and you are supposed to learn also. Very good, Nikita, you have done. Ashi has done. Ekta has done. Done, ma'am. स्पीकर ऑन करके डन बोलने की जरूरत नहीं है। Okay, almost everybody is done. So I'm running the board now. Meanings also over. First we did new words and then meanings, and now because it is a poem, so we will start doing the rhyming words. और न्यू पेज से शुरू करेंगे। 5th B के बच्चे मेरी आदत जानते हैं, 5th A के बच्चे सुन लेना। कई बच्चों की आदत होती है आधा पेज बच गया उसके नीचे से शुरू कर दिया, नहीं। वैसे भी कॉपी में हम आपको बहुत कम काम करवा रहे हैं और बाद में जो कॉपी के पेजेस बच जाएंगे वो रद्दी में ही जाते, कोई काम नहीं आते। काम आते हैं क्या बताओ? नहीं आते ना? तो आराम से पूरा मीनिंग न्यू वर्ड्स एक पेज पे या एक से ज्यादा पे भी अगर आ गए तो आप उस पेज के नीचे कुछ नहीं लिखोगे, उसको वहीं छोड़ दोगे। उसके बाद न्यू पेज से आप शुरू करोगे मीनिंग्स, वो आराम से एक पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद वापस अगेन न्यू पेज पे यू विल स्टार्ट राइटिंग राइमिंग वर्ड्स, RHYMING, राइमिंग वर्ड्स। अब ऐसे राइमिंग वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि पोएम 3 की बात कर रहे हैं, so I will give you all the words that are in rhyming in poem 3. Okay? Okay? Okay. First is me, see. Second is HEAD, head. BED, bed. इस पे सोते हो। BAD, bed. वो बैग होता है, बैग नहीं है ये, bed. I sleep on my bed. Bed. BED, bed. और BAD, bag. इसको ध्यान रखना। Grow slow. All. बोलने में आपको पता चल जाएगा। ग्रो स्लो, बॉल ऑल,
rhyming words. Up, buttercup, view, 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 view. Cat, cat. Is, फिज, फिज वर्ड कहाँ पढ़ा था अनन्या? फिज वर्ड इससे पहले कहाँ आया था अनन्या? मैम फिज वर्ड आया था। मैम मुझे पता है। आई एम टॉकिंग टू अनन्या, और किसी को स्पीकर ऑन नहीं करना है। Ananya, you can say, I don't remember, madam. I'm sorry, madam. Blackboard. Ananya, मैम फिज वर्ड आया था। if you don't remember, you can say, sorry, ma'am, I don't remember. सॉरी मैम आई कांट रिमेम्बर। Okay, no problem. Okay, Sadia. मैम वाले लस्सी इसमें आइसक्रीम very good, Sadia. Frosty Fizz from bottles full of Frosty Fizz. इसीलिए मैंने पूछा, यहीं से पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितना कंसंट्रेशन कर रहा है। एकदम से याद होना चाहिए आप लोगों को कि ये हमारा वर्ड कौन से लेसन में आया था। ओके, नेक्स्ट इज as, has, goes, G-O-E-S, goes, N-O-S-E, knows, N-O-E-S को लिख देना, G-O-E-S, goes, N-O-S-E, knows. They, say, और लास्ट है नंबर 12, A-N-N, M-A-N, man. A-N-N, M-A-N, man. Again 2 minutes I am giving you to note down all these 12 rhyming words. ऐसे आपको हर वर्ड के 2-2, 3-3 राइमिंग आने चाहिए। जब हम रिवीजन करेंगे आई विल बी आस्किंग यू, तब मैं आपसे पूछूंगी। अभी तो मैंने लिखवा दी। Now you can note down those who have completed. They can note down the question number 1 from the book on a new page. Question number 1. They can note down question number 1 from the book. One minute left. After 1 minute, I'll rub the board. Nisha, you have completed? Okay, good. Okay, तब तक मैं ये ले लेती हूँ attendance. So let me take your attendance. कोई भी ये मत बोलना excuse me madam, क्योंकि मैं ले रही हूँ attendance. बीच में आऊंगी आपके।
Okay, over. Just take 1 minute only. Okay, so I have taken the attendance now. All of you have written. Okay, now we will move to the question answer part. Timing was also over. Now note down the first question from the book. Note down the first question from the book. Who do you think your shadow looks like? Answer 1. Yes, Vedant. Who do you think your shadow looks like, Vedant? Like you. Like you, Ratnanjali madam? Like me. Yes, very good. My shadow looks like me only. ये लिखो क्या? My shadow looks like me only. शेडो सिर्फ मेरे जैसी दिखती है. ओके, जिसकी भी शेडो होगी वो उसके जैसी ही दिखेगी. Answer 1 over. Question number 2. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? My shadow, पहले क्योंकि why से पूछा है, jumps. मैंने आपको बताया था डायरेक्ट जब why से क्वेश्चन होता है तो आधा पार्ट तो हमें पहले क्वेश्चन में से ही लेना है. ओके, आधा पार्ट तो हमें क्वेश्चन में से ही लेना होता है. तो ये सब में बड़ा आंसर देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आधा पार्ट तो क्वेश्चन में से ही कॉपी करना है. So my shadow jumps into my bed before me jumps into my bed before me. अब यहाँ तक तो मैंने किसमें से ले लिया? इतना पार्ट किसका है? क्वेश्चन का पार्ट है ये, है ना? ये पूरा क्वेश्चन का पार्ट मैंने ले लिया है. ठीक है, मैम आपकी तस्वीर उठाई. because of the presence of the light in the room. क्योंकि हमारे रूम में रात को लाइट जल रही होती है और इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी शेडो जो है वो जम. हाँ जी, कौन बोल रहा है ये? टेल मी योर नेम प्लीज. मैम साइड प्लीज. वंशिका क्या बोल रही हो? आपस से बोलो. आपका कैमरा ऑफ है. कैमरा बिल्कुल ऑफ नहीं है. यस मैम. नो मैम. कैमरा इज नॉट ऑफ. मैम नो. Prathamesh, can you see the camera? Can you see me, Prathamesh? Can you see me? हाँ, तो बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. वंशिका, आपके वहां पे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, थोड़ा इश्यू आता है तो कभी कभी वो ऑफ हो जाता है. बाकी मैं सबको दिखाई भी दे रही हूँ, सुनाई भी दे रही हूँ. प्रिशा, यस, ओके. सो माय शैडो, आपकी शैडो किसकी जैसी लगती है ना? तो माय शैडो लुक्स लाइक मी ओनली. फर्स्ट आंसर. सेकंड आंसर कि आपकी शैडो आपसे पहले बेड पे जंप क्यों करती है? व्हाई डू यू थिंक माय शैडो जंप्स इनटू माय बेड बिफोर मी? बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इन द रूम. क्योंकि रूम में बहुत लाइट जल रही होती है हमारी, है ना? ट्यूबलाइट होती है या बल्ब होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी शैडो बेड पे हमसे पहले दिखाई देती है. थैंक यू क्रिस्टीना. क्रिस्टीना ने कमेंट किया है कि मैडम बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है. थैंक यू क्रिस्टीना. Okay, 1 minute I am giving you. After that I will rub the board. Please note down the third question. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा, उसमें 3 ऑप्शन भी है, वो तीनों ऑप्शन भी आपको नोट करने हैं. और 1 2 3 प्लीज. यस, साइड एक के नीचे एक कर रहे हैं. मैंने थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लिया. वेरी गुड.
Shall I have the board now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am वालों को बोलने की जरूरत नहीं है. Once again I'm telling you, जब मैं पूछूं कि क्या मैं बोर्ड रब कर दूं, तो जिन बच्चों का हो चुका है उनको तो कुछ भी नहीं बोलना है. जिसका नहीं हुआ है उसको प्रॉब्लम होगी ना, तो वो बोलेगा कि नो मैडम. So once again I am asking you, can I rub the board? जिनका यस है उनको No, ma'am. हाँ, जिनका नो है उनको बोलना है. ओके, 1 more minute I am giving you. थोड़ा जल्दी से लिखिए. Okay, so 1 minute as I said is over. Now I am rubbing both the answers. And you are ready with question 3. Till then you can write question number 3. आपको बताइए कि मैडम इसके बाद question 3 करवाएगी तो आप question 3 लिख के रख सकते हो. So what is the question number 3? What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? Evening. Evening में tallest होती है. Night. Night. मैंने आपको Night. Morning. Night, ma'am. Actually, night होगा. Ma'am, night. Ma'am, morning. Afternoon. Morning. Ma'am, morning. Night. पहले आप और से चिल्ला लो. Morning. पहले ऐसा करो कि आप और जोर जोर से चिल्ला लो, आपस में डिस्कशन कर लो. इवनिंग, नाइट, पोल्स बना लो, अलग अलग पोल्स बना लो. आई टोल्ड यू टू डू वन एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको बोला था. ठीक है, तो आपका जिन्होंने नाइट बोला उनका आंसर भी रॉन्ग है, जिन्होंने इवनिंग बोला उनका आंसर भी रॉन्ग है. मॉर्निंग इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद भी जा सकते. यस. सो आज क्या लिखा है इसको, सॉरी, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू थिंक, तो आप मॉर्निंग पे टिक कर दोगे. तीनों ऑप्शन लिख के, मॉर्निंग में होता है या आफ्टरनून में होता है या नाइट में होता है. सबसे टॉलेस्ट हमारी शेडो होती है मॉर्निंग, तो आप पहले मॉर्निंग के ऊपर टिक लगा दो और बाकी का आंसर मैं लिखवा रही हूँ नीचे. मैम उसके सामने लिखना है कि नीचे? Our shadow is the tallest in the morning. ये तो आपने वैसे टिक भी कर दिया, लिख भी दिया. अब क्यों होती है उसका रीजन, क्यों होती है उसका रीजन हम लिखेंगे. It is because the sun rays are slanting. Slanting line पता है ना, प्रैक्टिसिटी भी slanting. याद आया? Slanting ऐसे, slanting line प्रैक्टिस करा आपने, है ना? Slanting at the time of sunrise. At the time of सनराइज. ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि सनराइज के टाइम में जो सूरज की किरणें होती है वो ना सीधी गिरती है ना आड़ी गिरती है, वो गिरती स्लैंटिंग गिरती है. स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन,
और स्लैंटिंग लाइन ऐसे आड़ी, ठीक है, लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइंस फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ये आज का लास्ट है क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट क्लास भी लेना है। He is very very like me from the heels up to the head. Who does he here refer to? अब इसमें एक में अपने 4 क्वेश्चन है, तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि he किसके लिए कहा गया है? He is very very like me, तो he कौन है? He is referred to the shadow. he किसके लिए कहा गया है? he यहाँ पे शैडो के लिए कहा गया है। he किसके लिए कहा गया है? he is very very like me. अरे वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है, तो वो कौन है यहाँ पे? वो कौन है? वो शैडो है, तो शैडो के लिए कहा गया है। who does me here refer to? me here refers to the poet, जो बच्चे पोएम बोल रहा है। मी का मतलब अंजलि मैडम ने नहीं है, मी का मतलब तुम भी नहीं हो। मी यहाँ पे किसके लिए कहा गया है? जो बच्चा ये पोएम सुना रहा है, बोल रहा है। And the last is, why are he and me alike? he और me alike क्यों है? दोनों एक जैसे क्यों हैं? कुसुम, why are he and me alike? Ma'am, side please. Yes, Kusum, I am waiting for your response. अभी मैंने आपको बताया कि he किसके लिए आया है? he is referred to the shadow, ठीक है? he is referred to the shadow and me here refers to the poet. और अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, why are he and me alike? he और me एक जैसे क्यों है? क्यों है कुसुम? प्रज्वल, Because it is my shadow. yes, because he is the shadow of me, इसलिए he और me alike होंगे। प्रज्वल और प्रज्वल की शेडो एक जैसी होगी कि नहीं होगी? होगी, थोड़ी लंबी छोटी हो सकती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर प्रज्वल के जैसा ही होगा। सो आई एम लविंग आंसर नंबर 3, और ये इसका थर्ड वाला मैं ऊपर लिखूंगी। थर्ड आंसर हियर आई एम राइटिंग, ताकि आपको ढंग से नजर आए। मैंने वो वाला रब कर दिया। He and me are alike because he is the shadow of me, क्योंकि he जो है वो me की shadow है, इसकी वजह से he और me alike है। तो प्रज्वल का आंसर बिल्कुल करेक्ट था कि जिसकी शैडो होगी वो उसी के जैसे तो दिखेगी। So 1 minute I am giving you to note this down, and after this I will end the class. Be ready for your CC competition tomorrow. Okay, time already you know 11 to 11:45. जो पार्टिसिपेंट्स है, जो पार्ट लेना चाहते हैं, वो गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन करेंगे, जैसे क्लास ज्वाइन करते हो नॉर्मल सेम वैसे ही। और अपनी बुक्स के साथ रेडी रहिएगा, क्योंकि बुक में से ही पैराग्राफ लिखने को बोलेंगे। वैसे तो भेजेंगे भी, पर बुक्स के साथ रेडी रहना। और जो बच्चे पेन से लिखते हैं, अपने अच्छे चलने वाले 1-2 पेन अपने पास रख ले, पेंसिल, और उसके ऊपर अच्छी राइटिंग में अपना खुद को लिखना है, अपना नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा किसका पेपर है ये? अंडरस्टूड? मैम खाली है ना, सबमिट करना है। मैम इसको सबमिट करना है क्या? नहीं, इसको अपने घर की दीवार पर चिपका देना, फिर मैं घर पे आ जाऊंगी देखने के लिए। डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस। अगर सबमिट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने क्या करा है? 5th
हो कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सबमिट करना है क्या? अगर सबमिट नहीं करोगे पीडीएफ बना के आपको उसको आपको वहां पे असाइनमेंट भेजना है, जैसे आप असाइनमेंट भेजते हो वैसे भेजना है उसको। Last 1 minute for those who have not noted down this last answer. Last 1 minute. Done. Okay, so that's all for now. See you tomorrow in tomorrow's English class. And whatever is being taught in the class, kindly start revising and learning that. इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बोला है कि आपको डेट शीट शेयर कर दी गई है। अब आपको पता है कि आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है, डेट्स ऑलरेडी आपको आ गई, सिलेबस बता दिया गया है यूनिट 1 और 2, तो उसको घर पे अच्छे से लर्न करना शुरू कर दीजिए।